অক্ষয় কুমার অভিনীত স্পেশাল ২৬ সিনেমাটির কথা মনে আছে? অসামান্য দক্ষতায় একের পর এক গয়না ও অন্যান্য দোকানে রেড করে টাকা পয়সা লুট করত ভুয়ো তদন্তকারী অফিসাররা। রূপলী পর্দার সেই ঘটনাই যেন বাস্তব রূপ পেল। একটি গয়নার দোকানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির অফিসার সেজে হানা দেয় কয়েকজন। একই সঙ্গে সেই গয়নার দোকানের মালিকের বাড়িতেও হানা দেওয়া হয়। রীতিমতো ভুয়ো আই কার্ড দেখিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে ভুয়ো অফিসাররা, আর এরপর রীতিমতো ভয় দেখিয়ে চলে লুটপাট। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। ওই ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে এই টিমের মাস্টার মাইন্ড সহ মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরপর ধৃতদের রীতিমতো হাত বেঁধে রাস্তায় প্যারেড করানো হয়। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে মোদির রাজ্য গুজরাটের কাছে। সোনা ও নগদ টাকা মিলিয়ে মোট ওই ব্যবসায়ীর থেকে ২৫ লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। শোরগোল ফেলে দেওয়া ঘটনাটি সোমবার ২রা ডিসেম্বর ঘটে। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে একজন ইডির অফিসার সেজে ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়েছে। সেই বাড়িতে মুখ কাচুমাচু করে বসে রয়েছেন ওই ব্যবসায়ী, তার স্ত্রী ও মা। এই সেই ভুয়ো ইডি অফিসার বাবাজি, যিনি একেবারে আসল ইডি অফিসারের মতন ওই এলাকায় গেছেন, মানে ব্যবসায়ীর বাড়িতে গেছেন এবং আই কার্ড দেখাচ্ছেন, নিজেকে ইডি অফিসার বলে পরিচয় দিচ্ছেন। আর এই ভুয়ো ইডি অফিসার তাদেরকে ভয় দেখাতে থাকেন। তাদেরকে ভয় দেখিয়ে ওই পরিবারের কাছ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। ওই ভুয়ো ইডির অফিসার পরিচয় দেওয়া ব্যক্তি ব্যবসায়ীর পরিবারকে হুমকি দেয়। জানা গেছে ওই ব্যবসায়ীকে তার কাছে কত টাকা রয়েছে তার সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করে। এর জন্য ওই ব্যবসায়ীকে ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়। একসঙ্গে তাকে সাবধান করা হয় সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য। জানা গেছে গুজরাটের গান্ধীধাম এলাকায় ওই ব্যবসায়ীর সোনার দোকানে ভুয়ো রেড হয়। সোনা, রূপোর গয়না ও নগদ টাকা সহ ২৫ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতী। এরপরই গান্ধীধাম ডিভিশন এ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যবসায়ী। এরপরই তদন্তে নেমে মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের হাত বেঁধে প্যারেড করানো হয় প্রকাশ্য রাস্তায়। সেই ভিডিও ভাইরালও হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দেখুন সেই ভিডিও। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से ये आपको डराने खाली ये है कि मेरा एग्जाम पता है वो रिपोर्ट कर लेंगे कि हमने सब जानकारी आपको दे रहे हैं। ये सारी सब चीज़ आपको जानकारी है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना। ये बात से कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने छुपाई है, हमने छुपाई, ये है वैसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने छुपाई है, हमने छुपाई, ये है हमारी नाम है एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है सर। ये है जो हमें जानकारी मिली है, हमें आशा है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, बाकी डरने की कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर इन केस कुछ ऐसा लगता है किसी का फोन आना, हमें कोऑपरेट करेंगे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे काम की, तो वो ज़्यादा जल्दी से चीज़ें सुलझ जाएगी। नहीं होगा तो चीज़ें लंबी जाएगी। अभी हम आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि आपके नॉलेज में ऐसा कुछ है तो आप हमें अभी से बता दीजिए, नहीं तो फिर चीज़ें लंबी ज्वेलरी वाली बात नहीं। ज्वेलरी हमें भी समझ में आता है, ज्वेलरी क्या होती है, ज्वेलरी ना गोल्ड के बिस्किट होते हैं, बिग्स होती है, चीजें होती हैं, जो भी है बिल्कुल जो है मैं आपको कंपनी कितनी है, डायमंड कितने हैं, जो अनथराइज है, बिल नहीं है जिनका, वो सारे सब चीजों का कोर्स फर्क होगी। बिल आपके पास में कितनों के मिलेंगे, कितनों के नहीं मिलेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आप आराम सोच लीजिए। हम अभी आपको बिल्कुल सहयोग से काम करेंगे, पुलिस में दौड़ाने की बात नहीं है, ठीक है ना। आप सोच लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखें, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत मिसगाइडिंग चीजें कुछ होता है, बिल्कुल नहीं होता। हम ऐसे ही उठ के नहीं आए हैं, मुझे पता है वो आप जो है आप पूरा उसका इलेक्शन करके आए हो, वो हम पता है। इसलिए अभी का भी आपको छोड़ रहे हैं कि भाई चीजें आप अपने हिसाब से कर लें और हमें सही जानकारी दे दें कि भाई चीज है ऑन रिकॉर्डिंग। मुझे और भी হঠাৎ করে যদি বাড়িতে এরকম সুটেড বুটেড হয়ে কেউ আসেন আর নিজেকে তদন্তকারী সংস্থার অফিসার বলে পরিচয় দেন, তাহলে সেই বাড়ির লোকেদের অবস্থা কেমন হয় বলুন তো।
গুজরাটের ওই ব্যবসায়ের তখন এই রকমই অবস্থা, দেখুন সেই সময় যা করছিলেন। এ বিষয়ে সাগর বাগমার এসপি গান্ধীধাম गुजरात তিনি কি বলছেন শোনাবো। तारीख 2 दिसंबर 2024 की रोज सुबह 11 बजे के आजू बाजू गांधीधाम के जो मेन बाजार है वहाँ पे एक राधिका ज्वेलर्स की दुकान है। वहाँ पे ईडी के नकली अधिकारियों की एक टीम ने वहाँ पे एक रेड का पूरा एक जो है एक नाटक किया। और उसमें सबसे पहले उन्होंने वो ज्वेलरी की शॉप में कुछ चीज़ों का सर्च किया, ज्वेलरी और साथ साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स। फिर थोड़ी देर बाद में जो दुकान मालिक थे उनको बोला कि आपके घर में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन है, तो फिर उनको उनके घर लेके गए जो दुकान से 5 मिनट की दूरी पे था। जब घर में गए तो वहाँ पे घर में भी ज्वेलरी के आइटम्स और वहाँ के जो अंदर में जो कैश अमाउंट था उसको उन लोगों ने सभी ने निकलवाया। और तब जो है लगभग 6 से 7 लोग जो है उनके ये पूरे जो नकली जो पूरा ग्रुप था उन्होंने ये रेड का पूरा नाटक किया। थोड़ी देर बाद में वो उनके एक जो और सगे भाई थे उनके घर पे गए, वहाँ पे भी कुछ सर्च किया, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद एक और उनके भाई थे, वहाँ पे भी सर्च किया। ये पूरा जो पूरी जो घटना थी वो सुबह लगभग 11 बजे के आजू बाजू स्टार्ट हुई और 2-2:30 बजे तक के आजू बाजू ये पूरा इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। फाइनली जब ये लोग निकल रहे थे तो तब उन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई और हम कहीं और जाना था, कहीं और आ गए। और जब ये निकले तो बाद में जब मालिक के द्वारा पूरा स्टॉक को टैली किया गया तब पता चला कि उनके स्टॉक में से कुछ गोल्ड का बिस्किट, कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी के आइटम मिसिंग है। ये जो पूरी टोल की जो ये नकली रेड करने आई थी उसमें अभी तक पुलिस द्वारा 12 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 11 पुरुष है और एक महिला है। महिला भी जो है वो ये नकली रेड में शामिल थी। और पुलिस द्वारा ये पूरे अंजाम में भारतीय न्याय संहिता की धारा 305, 204 के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है। और अभी जो आरोपी को पकड़ा गया है उनकी पूछपरछ चालू है और आगे इनकी रिमांड भी लेने में आएगी। जैसे ही इस घटना की इन्फॉर्मेशन पुलिस को 2 तारीख को मिली थी, तात्कालिक गांधीधाम एलसीबी, गांधीधाम ए डिवीजन पुलिस स्टेशन के अधिकारी, सभी टीम्स, लगभग इसमें 10 टीमें बनाने में आई थी। और ये 10 टीमों ने अलग अलग जगह से, जिसमें गांधीधाम, भुज, अहमदाबाद, इन अलग अलग जगहों से सभी आरोपियों को पकड़ा है और अभी पुलिस द्वारा इनकी इंट्रोगेशन चालू है। इसमें जो 12 लोग पकड़े गए हैं उसमें भुज और गांधीधाम के लगभग 6 लोग इसमें शामिल हैं। और अगर अभी भी और भी इंट्रोगेशन में कोई और लोग निकलते हैं तो उनको भी पुलिस द्वारा पकड़ने में आएंगे। देखिए एक्चुअली क्या है, हम आपको बताते हैं, इसको डराना की बात नहीं, हम ईडी से লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা।